অজিত কুমাৰ বৰদলৈৰ ৰচিত অৰবিন্দ দিহিঙীয়াৰ কণ্ঠৰ এই গীতটিৰে আমাৰ আজিৰ গীতাঞ্জলি অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰা হৈছে। এয়া আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়। খন্তেক পিছতে ক্ৰমে 7:55 আঞ্চলিক বাতৰি আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা 8 বজাত উজনি অসমৰ বাতৰিৰ সৈতে মই যদুমণি শইকীয়া। শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছৰ 13দিনীয়া অনুষ্ঠান অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব। সেইদিনাই যোৰহাটলৈ শিল্পীগৰাকীৰ চিতাভস্ম লৈ যোৱা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। ডক্টৰ শৰ্মাই কালি এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতিৰ সন্দৰ্ভত যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী, মৰিয়নিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু যোৰহাট ব্যৱস্থাৰে এখন বৈঠকত মিলিত হয়। সন্দৰ্ভত সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ মতামত ল'ব আৰু সেই অনুসৰি পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থাসমূহ লোৱা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কালিৰে পৰা পৰ্যটকৰ বাবে পুনৰ মুকলি কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাগৰি বনাঞ্চলত কালি পুৱাৰে পৰা জীপ ছাফাৰী আৰম্ভ হৈছে। প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনেৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি কাৰ্যসূচীত সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কৰ্তৃপক্ষ উপস্থিত থাকে। বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই 2025-26 পৰ্যটন বৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ যথেষ্ট সংখ্যক পৰ্যটকৰ আগমন হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। প্ৰথম পৰ্যায়ত বাগৰি ৰেঞ্জ আছে, সেইটো আৰম্ভ কৰা হৈছে। তাৰপাছত বাকীখিনিও পৰ্যায়ক্ৰমে আৰম্ভ কৰা হ'ব। আশা ৰাখিছোঁ যে পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব, কাৰণ নতুন নতুন বহু বস্তু ইয়াত সংযোজন কৰিছে আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰাইছে অঞ্চলটো। এইখিনি মই যিখিনি স্থানীয় লোক আছে তেখেতসকলকো আহ্বান কৰিম যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে তেওঁলোকক বহুত দিছে। যিমান দোকানী আছে, হোটেলদাৰ আছে, যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন নথকানে সেইবিলাক দোকানৰ কোনো মূল্য নাথাকিব। দোকানবিলাকে বেছি লেতেৰা কৰে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে যাতে চব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা অটুট থাকে। কাজিৰঙাৰ কহৰা বনাঞ্চল অহা অক্টোবৰৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত অহা 1 নৱেম্বৰত হাতী ছাফাৰী আৰম্ভ হ'ব বুলি উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে। জনতাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত অভিযুক্তসকলৰ সপক্ষে থিয় নিদিবলৈ সদৌ অসম উকিল সন্থাই ৰাজ্যৰ সকলো অধিবক্তাকে আহ্বান জনাইছে। এটা প্ৰেছ বিবৃতিৰ জৰিয়তে সদৌ অসম উকিল সন্থাৰ সভাপতি শৈলেন্দ্ৰ দাস, সাধাৰণ সম্পাদক দীপক কুমাৰ দাস, কাৰ্যকৰী সভাপতি মানস সৰণী আৰু উপ-সভাপতি বিজন কুমাৰ মহাজনে এই আহ্বান জনাইছে। প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত জুবিন গাৰ্গৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰে জড়িত সন্দেহত বহুকেইজনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে তৎপৰতাৰে বিশেষ তদন্তকাৰী গোট SIT গঠন কৰিছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিসকলে অগ্ৰিম জামিন বা জামিন বিচাৰি অধিবক্তাসকলৰ ওচৰলৈ আইনী সাহায্যৰ বাবে আহিব পাৰে। এই প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিৰ জৰিয়তে অধিবক্তা সমাজে নৈতিক আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শিল্পীগৰাকীৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ সৈতে জড়িতসকলৰ হৈ ওকালতি নকৰি সুচিন্তিতভাৱে সমাজৰ পক্ষত থিয় দিবলৈ অধিবক্তাসকলক আহ্বান জনোৱা হৈছে। BTC নিৰ্বাচনত BPF দলে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। শেহতীয়া ভোট গণনাৰ তথ্য অনুসৰি এতিয়ালৈকে 28টা সমষ্টিত BPFৰ প্ৰাৰ্থীয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। UPPL 4খন, BJPয়ে 2খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। 6খন আসনৰ ফলাফল এতিয়াও ঘোষণা কৰিবলৈ উত্তৰ লখিমপুৰ সাহিত্য সভা ভৱনত কালি লখিমপুৰ জিলাৰ সমূহ দল সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হৈ এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰে। এই সভাত জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ জিলাখনৰ সকলোৱে মিলি ৰাজহুৱাভাৱে গ্ৰহণ কৰা হয়। ইফালে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্ধিয়া প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ তদন্তৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি মম জ্বলাই সমদল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে।
ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙিৰ পৰা এই মম শিখালৈ উলিওৱা সমদলত ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকলৰ লগতে ভালেসংখ্যক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। অহা 14 অক্টোবৰত লখিমপুৰ জিলাৰ 4 লাখ লোকে একেলগে জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰিব। এই উদ্দেশ্যে জিলা আয়ুক্ত প্ৰণৱজিৎ কাকতিৰ অধ্যক্ষতাত কালি এখন বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকত জিলাখনৰ ভালেসংখ্যক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত থাকে। মৰাণ জনগোষ্ঠীক স্বায়ত্তশাসন প্ৰদান আৰু জনজাতিকৰণ প্ৰদানৰ দাবীত মৰাণ জাতীয় সংগঠনৰ উদ্যোগত গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে। কালি মাকুমত জনগোষ্ঠীটোৰ সংগঠনসমূহৰ এখন যৌথ প্ৰতিবাদী সভাত কাৰ্যসূচী সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে। भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी स्वदेशी तकनीक से निर्मित 97,500 से अधिक 4G मोबाइल टावरों का उद्घाटन करेंगे। अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार मिला। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, इस खोज से देश के लिए ऊर्जा क्षेत्र में अपार अवसर खुलेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ब्रिक्स देशों से अशांत विश्व में शांति स्थापना और कूटनीति के संदेश को मजबूत करने का आह्वान। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीन को मान्यता देने पर पश्चिमी देशों की आलोचना की। एशिया कप क्रिकेट में भारत सुपर ओवर में श्रीलंका को हराकर फाइनल में पहुंचा और 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, ग्रामीण आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हैं। एक रिपोर्ट। पश्चिम ओडिशा के औद्योगिक नगर झारसुगुड़ा के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 1,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 रेलवे परियोजना का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे, जिससे राज्य में रेलवे बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगी। दूरसंचार क्षेत्र में प्रधानमंत्री 97,500 से अधिक मोबाइल 4G टावर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिन्हें लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी तकनीक से निर्मित किया गया है। इसमें 92,600 से अधिक 4G टावर बीएसएनएल द्वारा स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री 8 IIT का विस्तार भी घोषित करेंगे। साथ ही ब्रह्मपुर के MKCC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तथा बुर्ला संबलपुर के बेलसार अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी का दर्जा देंगे। प्रधानमंत्री ओडिशा स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 2 का भी शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत संबलपुर और ब्रह्मपुर में ऑल स्किल सेंटर्स का स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री अंत्योदय गृह योजना के तहत 50,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे। झारसुगुड़ा का ये दौरा पिछले 15 महीनों में ओडिशा का प्रधानमंत्री मोदी का 6ठा दौरा है। आलोक चंद्र बारिक, आकाशवाणी समाचार, झारसुगुड़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज से पुष्टि होती है कि अंडमान सागर प्राकृतिक गैस से समृद्ध है। श्री पुरी ने कहा कि अंडमान सागर में ऊर्जा के अवसरों का एक महासागर खुल गया है। उन्होंने अंडमान द्वीप श्री विजयपुरम ट्रू कुएं में प्राकृतिक गैस होने की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गैस के नमूने का काकीनाडा में परीक्षण करने पर जानकारी मिली कि उनमें 87% मीथेन है। उन्होंने कहा कि गैस भंडार का आकार और खोज की व्यावसायिक व्यावहारिकता आने वाले महीनों में सत्यापित हो जाएगी। श्री पुरी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित गहरे पानी के मिशन के अंतर्गत नई खोजों और हाइड्रोकार्बन भंडार का पूर्ण उपयोग करने के लिए गहरे पानी के अन्वेषण की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस अमृतकाल के माध्यम से भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल नई दिल्ली में लुसी होटल नेशनल बेला এখন वन খুলি हेल्थ দিলে मिशन की समीक्षा की। लुसी मानव, पशु, पेड़ पौधों और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच आपसी संबंधों को पहचानने बोले में নহয় इस मिशन की পানীও भूमिका নাপাওঁ पर তাত स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि পানী দিয়ক বুলি ক'লে केवल পানী करने से ही অলপ भविष्य के পাছতে खतरों আহিব का আমাৰ अंदाजा চাবিটো लगाया লক কৰি जा থৈ सकता গৈছে है और उन्हें रोका जा सकता है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि नेशनल वन हेल्थ मिशन के माध्यम से विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयास रिपोर्ट को वास्तविक परिणामों में बदल रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में रिकॉर्ड 10,000 किसान उत्पादक संगठन FPO हैं। श्री चौहान ने कल नई दिल्ली में कहा कि ये संगठन किसानों की आय बढ़ाने और छोटे किसानों को महत्वपूर्ण बाजार लाभों तक सीधी पहुंच और मोल भाव की शक्ति प्रदान करने की दिशा में एक सही कदम है। कृषि मंत्री ने कहा कि 2 से 3 साल पहले शुरू हुए FPO ने भी 1 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। लगभग 100 किसान उत्पादक संगठन 10 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे हैं। डाक विभाग ने अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट के शुल्क में संशोधन किया है। विश्वसनीयता, सुरक्षा और ग्राहक सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से नई सुविधाएं शुरू की गई हैं। संचार मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित शुल्क 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। মুম্বাইত যে ক'ৰ পৰা আহে তৰবুজ ইমান বেছি তৰবুজ মানে ইমান বেছি তৰবুজ সব মানুহে ৰাস্তাত 400-500 লৈ বহি থাকে বহুত বেছি দেই একদম 2000 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 50 ग्राम तक वजन वाली वस्तुओं पर 47 रुपए का शुल्क लगेगा। मंत्रालय ने कहा कि स्पीड पोस्ट वस्तुओं पर भी GST लागू होगा। विद्यार्थियों के लिए स्पीड पोस्ट सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए स्पीड पोस्ट फ्रूट्स মানে ইমান পায় তাত একদম মানে আমাৰ ইয়াত नए थोक ग्राहकों को আমাৰ ইয়াত একো বস্তুৱে নাপায় তাৰমানে সেইটো छूट भी दी जाएगी। संचार मंत्रालय ने कहा कि स्पीड पोस्ट के लिए शुरू की गई नई सुविधाओं में OTP তাত आधारित এইবোৰ डिलीवरी, 20 টকাতে পাই দিয়ক কাটি থোৱা सुविधा, SMS आधारित डिलीवरी গোটেইটো কিনিব নালাগে रियल टाइम डिलीवरी अपडेट शामिल है। समाचार कक्ष से মাটি কঁঠাল এতিয়া তই 20 টকাত কাটি কাটি থৈ দিয়ে সেইটো তই খাব পাৰ মাটি কঁঠালটো এনেই কিনিবলৈ গ'লেতো বহুত বেছি পৰে आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक यात्रा जीवंत परंपराओं से जुड़ी और दुनिया के लिए खुली रही है। विदेशों से चुराई गई मूर्तियों और पवित्र अवशेषों को वापस लाने, लंबे समय से खोई हुई प्राचीन वस्तुओं को प्राप्त करने तक ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान की कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक यात्रा जीवंत परंपराओं से जुड़ी और दुनिया के लिए खुली रही है। विदेशों से चुराई गई मूर्तियों और पवित्र अवशेषों को वापस लाने, लंबे समय से खोई हुई प्राचीन वस्तुओं को प्राप्त करने तक ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान और खोई हुई चीजों को वापस लाने की कहानी है। आज का भारत अपने इतिहास पर गर्व करता है। बीते 1 दशक में हमने देश की धरोहरों के संरक्षण पर मिशन मोड में काम किया है। देश की एंशिएंट स्टैच्यूज और आर्टिफैक्ट्स जिन्हें चुराकर विदेशों में बेच दिया गया था उन्हें वापस लाया गया है। वर्ष 2014 से अब तक 642 चुराई गई प्राचीन वस्तुओं को वापस लाया जा रहा है, जबकि 2013 से पहले केवल 13 प्राचीन वस्तुएं ही स्वदेश लाई जा सकी थीं। इनमें से तस्करी के माध्यम से विदेश गई कई कलाकृतियां राजनयिक माध्यमों, कानूनी कार्रवाई और सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से स्वदेश लाई जा रही हैं। इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 3री शताब्दी ईसा पूर्व के भगवान बुद्ध के पिपरहवा के अवशेष की वापसी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आयोजन को भारतीय विरासत के लिए खुशी का दिन बताया है। प्राप्त की गई अन्य प्राचीन वस्तुओं में ब्रिटेन से ब्रह्मा और ब्रह्माणी की पत्थर की मूर्तियाँ, अमेरिका से देवी दुर्गा की पत्थर की मूर्ति, अमेरिका से नटराज की नृत्य मुद्रा में बलुआ पत्थर की मूर्ति, ऑस्ट्रेलिया से बैठे हुए बुद्ध और अमेरिका से बाहुबली की मूर्तियाँ शामिल हैं। ऐसी ही कुछ वस्तुएं प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान लौटाई गई हैं। प्राप्त की गई प्रत्येक मूर्ति और वापस लाई गए प्रत्येक स्मारक में जड़ों से जुड़ते हुए राष्ट्र की धड़कन समाहित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि विरासत केवल इतिहास नहीं, ये मानवता की साझा चेतना है। हेरिटेज केवल हिस्ट्री नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी की एक साझी चेतना है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। इस महीने की 22 तारीख से लागू अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने पर्यटन और सार्वजनिक परिवहन को और अधिक किफायती बनाने के उद्देश्य से कर कटौती की घोषणा की है। साथ ही प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा दिया है। 7,500 प्रति रात्रि से कम कीमत वाले होटलों के कमरों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है। ये कदम मध्यम वर्ग और बजट यात्रियों को लाभान्वित करेगा, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा बढ़ाएगा। ये कटौती हेरिटेज पर्यटन, होम स्टे और पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किट को बढ़ावा देगी। इकोनॉमी क्लास की हवाई यात्रा पर 5% की दर बरकरार रखी गई है, जिससे जागरूक पर्यटकों को राहत मिलेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए एक छात्र वैष्णवी ने सरकार की और आभार। मैं बनारस की रहने वाली हूँ। साथ ही मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है। जर्नलिज्म एक ऐसी फील्ड है जहाँ आपको अक्सर आपका आना जाना लगा रहता है। उसके साथ साथ मेरे फ्लाइट का और होटल का खर्चा काफी बढ़ गया था, लेकिन जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुई तब से फ्लाइट के खर्चे में और होटल के खर्चे में काफी कटौती हुई है, जिससे मेरे बजट में थोड़ा सा सुकून भी मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस महीने की 21 तारीख को नागरिकों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने और घरेलू उद्योगों, स्थानीय कारीगरों और एमएसएमई को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। ईशानी यादव के साथ शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम मार्केट मंत्रा में आज शाम 6:30 बजे अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर चर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे विशेषज्ञों से वस्तु और सेवा कर से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि बहुपक्षवाद के दबाव के समय में ब्रिक्स तर्क और रचनात्मक बदलाव के एक मजबूत आवाज बनकर खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा कि इस अशांत दुनिया में ब्रिक्स को शांति निर्माण, संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के संदेश को मजबूत करना चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत स्वतंत्र फलस्तीन के निर्माण की संभावना को खारिज कर दिया है। इजराइल ने इसे अपने देश के लिए आत्मघाती बताया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कल रात श्री नेतन्याहू ने फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन सहित पश्चिमी देशों के फलस्तीन को मान्यता देने की आलोचना की। सम्मेलन में इजराइल के साथ साथ एक संप्रभु फलस्तीन और दोनों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का आह्वान किया गया था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हथियार नहीं डालने और बंधकों को रिहा नहीं करने पर गजा में हमास को समाप्त करने की चेतावनी दी। एशिया कप T20 क्रिकेट में